العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اس وقت جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ اہم موضوع ہے. ہمارا موضوع ہے: کیا محسوس کائنات سے پرے وجود ممکن ہے؟ Is existence possible beyond perceptual universe؟ تو سب سے پہلے میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ ایگزسٹنس سے یہاں میری مراد صرف الٹیمیٹ ایگزسٹنس نہیں ہے، نیسیسری ایگزسٹنس نہیں ہے، بلکہ ایگزسٹنس سے میری یہاں مراد وہ تمام ایگزسٹنس جو پرسپچول یونیورس سے، پرسپچول ریئلٹی سے پرے ہے، جو بیانڈ پرسپچول ریئلٹی، جو بھی ریئلٹیز ہیں، جو بھی ایگزسٹنٹس ہیں، وہ سب مراد ہے. چاہے وہ الٹیمیٹ ایگزسٹنس ہے، نیسیسری ایگزسٹنس ہے جس کو ہم اللہ، خدا یا گاڈ کہتے ہیں، یا وہ ڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ہے، چاہے وہ ملائکہ ہے، چاہے وہ یہ جنت و جہنم ہے، یا باقی نارمیٹو، ایتھیکل اور باقی میٹافزیکل ایستھیٹک ریئلٹیز اور ایگزسٹنس ہے. تو یہاں ایگزسٹنس سے میری مراد یہ سب ہے. تو ان سب کے بارے میں مجموعی طور پر، عمومی طور پر بات ہوگی. تو اس سوال کے لیے میں نے دنیا کے 3 بڑے نظریات کو چن لیا ہے. ایک ایتھیزم ہے، دوسرا نظریہ سائنس کا نظریہ ہے، اور تیسرا نظریہ ریویلڈ ریلیجنز کا ہے. سب سے پہلے ہم ایتھیزم کو لیں گے کہ اگر ہم یہ سوال ایک ایتھیسٹ سے پوچھیں گے، ایک ایتھیسٹ کا کیا جواب ہوگا، اور ایتھیسٹ کس شخص سے بولتے ہیں. ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایتھیسٹ اس شخص کو کہتے ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، جو اس ہستی کے وجود کا انکار کرتا ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، جو اس پوری کائنات کے وجود کے پیچھے جو ہستی ہے، جس کو ہم خدا کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے، یہ سب سے پہلے یہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، یعنی یہ گاڈ لیسنس کا کانسیپٹ مانتا ہے. حالانکہ اس کی جو کلیم ہے وہ ان ریزنیبل ہے واٹس ایور. تو اگر ہم ایک ایتھیسٹ سے یہ سوال پوچھیں گے، از ریئلٹی اور از ایگزسٹنس پاسبل بیونڈ پرسپچول یونیورس، ہی ول سمپلی ریپلائی نو. تو اس کا جواب نو میں آئے گا. تو اگر یہی سوال ہم ایک سائنٹسٹ سے پوچھیں گے جو ایک سنسیئر سائنٹسٹ ہے، ایک ٹرسٹ وردی سائنٹسٹ ہے، ایک ٹروتھ فل سائنٹسٹ ہے، ایک سنسیئر سائنٹسٹ ہے، تو اس کا جواب سائلنس میں آئے گا. ہی ول ریپلائی مے بی، مے ناٹ بی. تو اب اس کی کیا وجوہات ہے وہ میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. اگر یہی سوال ہم ریویلڈ ریلیجنز کے سامنے رکھیں گے، جو مذاہب، جو ادیان منزل من اللہ ہے، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، یا اسلام ہے، جو موجودہ 3 بڑے مذاہب دنیا میں ہیں، دین دنیا میں ہے، ادیان ہے، تو ان کا جواب یس میں آئے گا. تو ان کا جواب پازیٹو میں آئے گا. تو سائنس اصل میں کس چیز کو پڑھتا ہے؟ سائنس اصل میں نیچر کو اور فزیکل تھنگس کو، ان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتا ہے، اور سائنٹسٹ اس کے لیے ایک سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات آگے انشاءاللہ ہوگی. تو سب سے پہلے ہم ایتھیسٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک ایتھیسٹ کا جواب نفی میں کیوں آتا ہے. ایک ایتھیسٹ پرسپچول ریئلٹی ایگزسٹنس کے بیونڈ ایگزسٹنس کے وجود کا انکار کیوں کرتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایتھیزم میں جو ویلڈ سورسز آف نالج ہے وہ کیا ہے.
जो वेज ऑफ नोइंग है, जो सोर्सेज ऑफ नोइंग है, वो क्या है? सोर्सेज ऑफ नोइंग द एग्जिस्टेंस, सोर्सेज ऑफ नोइंग द रियलिटी। अब चूंकि हर किसी नजरिए या हर किसी एक फलसफे के नजदीक कुछ मोतबर तरीन मीन्स ऑफ नोइंग होते हैं, वेज ऑफ नोइंग होते हैं, तो एथीस्ट के या एथीज्म के नजदीक जो जनरली सबसे ज्यादा वैलिड मीन्स ऑफ नोइंग है वो है परसेप्शन। यानी जो हमारे सेंसेस है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, जो हमारे 5 सेंसेस है, उनके जरिए से जो हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं और उसको फिर हम वेरीफाई कर सकते हैं, तो उसी इंफॉर्मेशन को वैलिड मानते हैं। और जिन चीजों के बारे में, जिन हकाई के बारे में इन सेंसेस से हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है, हम जान सकते हैं, उन्हीं चीजों को वो रियल थिंग्स मानते हैं, उन्हीं चीजों को वो हकीकत में मानते हैं। बाकी जो इससे परे है उन चीजों का वो इनकार करते हैं। और परसेप्शन is the main source of information for knowing the existence or for knowing the reality before an atheist। तो atheist के सामने सबसे ज्यादा जो वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ये परसेप्शन है। आगे इंशाल्लाह हम बाकी इसकी वजाहत भी करेंगे, ये इसमें क्या डिफेक्ट्स वगैरह है। खैर, दूसरी बात जो है, दूसरा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक एथीस्ट के सामने है, ज्यादातर तो यही परसेप्शन है। और इस परसेप्शन की बुनियाद असल में एम्पिरिसिज्म है, और एम्पिरिसिज्म इज द कर्नल और कोर ऑफ पॉजिटिविज्म। सेंट साइमंस ने या अगस्कोम की जो फिलॉसफी है पॉजिटिविज्म की, तो उस फिलॉसफी का जो कर्नल है, जो सेंटर है, जो फोकस है, जो मगज है, वो एम्पिरिसिज्म है। और उसी एम्पिरिसिज्म की बुनियाद पर ये परसेप्शन का नजरिया दुनिया में चल रहा है। और इन्हीं लोगों को हम एम्पिरिसिस्ट्स भी बोलते हैं, पॉजिटिविस्ट्स भी बोलते हैं। और यही लोग ज्यादातर दुनिया में एथीस्ट्स है, यही लोग ज्यादातर जो इस एम्पिरिसिज्म का शिकार होते हैं, यही लोग ज्यादातर मेटाफिजिकल रियलिटीज या बाकी रियलिटीज का इनकार करते हैं। तो दूसरा जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के नजदीक है वो इंडक्शन है। इंडक्शन को हम ले मैन्स टर्मिनोलॉजी में सिंपली इस तरह समझ सकते हैं, इट इज going from particular observations to general conclusion. It means that to observe a particular theme or whatever we select for study. फॉर एग्जाम्पल हम टेम्परेचर की स्टडी करेंगे तो मुख्तलिफ लोकेशंस पर टेम्परेचर की स्टडी करके इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस लेके एक जनरल कंक्लूजन को तय करना, एक जनरल कंक्लूजन देना, इसको इंडक्शन बोलते हैं। इसकी भी वजाहत इंशाल्लाह आगे आएगी जब हम रिवील्ड रिलीजन्स की बात करेंगे, वहां पर इंशाल्लाह इसकी पूरी वजाहत आएगी। तो दूसरा जो नजरिया है वो साइंस का है। साइंस का दूसरा नजरिया है वो है कि एक साइंटिस्ट मे बी और मे नॉट बी में जवाब क्यों देता है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजह। और एक साइंटिस्ट के सामने भी, एक साइंटिस्ट की, हाँ, यही दो सोर्सेज ऑफ नॉलेज वैलिड है, परसेप्शन और इंडक्शन। जनरली जो साइंटिस्ट्स होते हैं, लॉजिक में दो स्ट्रीम्स है, एक इंडक्टिव स्ट्रीम है, एक इंडक्टिव वे ऑफ नोइंग है, एक इंडक्टिव वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, एक इंडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव आर्गुमेंटेशन है, और दूसरा डिडक्टिव आर्गुमेंटेशन या डिडक्टिव रीजनिंग है या डिडक्टिव रूट टू एक्सप्लेनेशन है। तो मगर जनरली जो साइंटिस्ट का जो तरीका कार रहा है और है इस वक्त भी, वो परसेप्शन और इंडक्शन को ही इस्तेमाल करते हैं। जनरली दे नेग्लेक्ट एंड अवॉइड द ओवर यूज ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग इन साइंस। जनरली यही उनका उसूल है। दैट इज व्हाई दे हैव टेकन आउट सम ऑफ द साइंटिस्ट्स, this mathematics etc from the science। तो अब यह है कि एक साइंटिस्ट और एथीस्ट, इन दोनों में फर्क क्या है। अब अगर से दोनों के आलात, जानने के आलात तो सेम है, दोनों के सामने परसेप्शन और इंडक्शन जानने के आलात है, तो फिर इनमें तफावत क्यों है, फिर इनमें ये फर्क क्यों है कि एथीस्ट और साइंटिस्ट के दरमियान ये फर्क नतीजे में क्यों है। अगरचे कि एपिस्टेमोलॉजिकली इनके सोर्सेज तो सेम है, मगर नतीजे के एतबार से, कंक्लूजन के एतबार से इनका नजरिया अलग अलग क्यों है। और एक एथीस्ट इनकार करता है और एक साइंटिस्ट साइलेंट क्यों रहता है। जो साइंटिस्ट एथीस्ट नहीं होता है वो साइलेंट क्यों रहता है। जो साइंटिस्ट एथीस्ट भी होता है वो इनकार करता है, और जो साइंटिस्ट एथीस्ट नहीं होता है वो इनकार नहीं करता है, वो साइलेंट रहता है। या वो कभी कभार अगर वो पूरी तरह से गौर फिक्र करे और बाकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मानने की कोशिश करे, तो वो
मेटाफिजिकल रियलिटीज को एक्सेप्ट भी करता है। तो यहां पर इसकी वजह मैं अर्ज करूंगा कि असल में जो एथीस्ट होता है ये सेंटिज्म पे बिलीफ रखता है, कि सेंटिज्म एक आइडिया है, एक फिलॉसफी है, कि एक व्यू है कि the best source of knowing and the only or absolute source of knowing is empiricism, is perception. Perception is the only or the absolute source of knowing the reality, knowing the existence. ये असल में प्रॉब्लम यहां से है। जब उन्होंने अपने लिए एक हद तय की, एक अम्ब्रेला तय किया कि इस अम्ब्रेला के नीचे जो जो चीजें आ सकती है वो हकीकत में है, और जो चीजें इस अम्ब्रेला के नीचे इसके तले नहीं आ सकती है वो चीजें नहीं है। दैट इज वाई एन एथीस्ट रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन परसेप्चुअल रियलिटीज, नॉन परसेप्चुअल एग्जिस्टेंस। तो नॉन परसेप्चुअल यूनिवर्स की इस ये एग्जिस्टेंस उसका ये इनकार करते हैं। यही वजह है कि चूंकि दे believe in scientism, and scientism is the idea of, it is the notion, it is a viewpoint that perception or senses or we can say empiricism is the only way of knowing the reality, knowing the existence. असल में ये मसला है, और साइंटिस्ट के लिए भी यही असल में के पास भी इंडक्शन या परसेप्शन ही है, मगर वो अगर सिंसियर हूं, वो मुतासिब ना हूं, चूंकि एथीस्ट मुतासिब होता है, वो अगर सिंसियर हूं तो वो एक कंक्लूजन ड्रा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अभी हमारी तहकीक में ये बातें नहीं आ गई है, और चूंकि हमारा दायरा कार और स्फीयर ऑफ एक्शन जो है वो कुछ अलग है, और जो हमारे पास आलात और टूल्स है और हमारा जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो कुछ अलग है। मेटाफिजिकल रियलिटीज तो एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए से हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट के पास आलात हैं, परसेप्शन या इंडक्शन, इन आलात से मेटाफिजिकल रियलिटीज का अहाता नहीं हो सकता है, डायरेक्टली इनसे अहाता नहीं हो सकता है। तो दैट इज वाई साइंटिस्ट्स या ये जो एथीस्ट्स है, दे रीच टू ए डिफरेंट कंक्लूजन, दो बोथ ऑफ देम हैव the same sources of knowing the existence or reality, but they reach to a different conclusion.